Hello, friends. Good morning to you all. How are you? Be safe and be at home. I am Pathan Mohammad Kalimullah Khan, Master of Science, Master of Education, and your science teacher. First of all, I welcome you to my YouTube channel, Khan Academy Science. Those who are new for this, I am requesting them to like my video and subscribe it so that every time when I will upload a new video, you will get its notification. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो आपको रेगुलरली मेरे सारे टीचिंग वीडियोस मिलेंगे. टुडे we'll discuss one of the most important life process in human being as well as in case of plant, that is excretion in case of human being and in case of plants. So once again I am requesting you to subscribe my channel so that you will get regular updates of my video lectures. So let's learn this important life process, that is excretion in human being. चलो फटाफट से तैयार हो जाओ, हम पढ़ते हैं excretion in human being in a easiest way so that all the concepts given in this will be easily understood by you. So let's go for it. Now first of all, we'll try to understand what is meant by excretion. सबसे पहली बात तो ये है कि हमको पता होना चाहिए excretion क्या है और क्यों ज़रूरी है. What is excretion and why it is needed in case of every living thing. So if you see the definition of excretion, you can say easily excretion is the process by which the waste product produced during metabolic activities is removed from the body. अगर हमने ये डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा तो हमको ये पता चलता है कि एक्सक्रिएशन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड होते हैं. कौन से वेस्ट प्रोडक्ट? विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करने के प्रोसेस का नाम है एक्सक्रिएशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट which nitrogenous waste product produced during metabolic activities and what are these metabolic activities. ये metabolic activities क्या है और कौन से waste product इस metabolic activities में produce होते हैं. तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमने सीखा है कि ह्यूमन बींग्स आर होलोजोइक. दे आर ईटिंग कंप्लीट फूड मटेरियल. Inside the body that food material is getting digested. After digestion that food material is get absorbed in the blood. Blood takes that nutrient to each and every cell. There that nutrients are used for producing energy as well as for giving the nutrient required to produce protoplasm. तो ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है जब ये हर सेल में जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट सेल में यूज़ होते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और न्यू प्रोटोप्लाज्म प्रोड्यूस होता है. ये जो कंप्लीट प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का और न्यू प्रोटोप्लाज्म का, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. यूज ऑफ digested simple organic nutrient to produce energy as well as to produce new protoplasm is known as metabolism. ये प्रोसेस का नाम है मेटाबॉलिज्म. इसके दो पार्ट है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म. अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है, मेटाबॉलिज्म तो हमको समझ में आ गया है कि न्यूट्रिएंट यूज होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, न्यू प्रोटोप्लाज्म प्रोड्यूस होगा. इट्स ओके. अब ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से आ गए बीच में? So during metabolic activity, when nutrients are used to produce energy or new protoplasm, at the same time some nitrogenous waste end products are produced as a byproduct.
तो जब प्रोटीन हमारे बॉडी में यूज़ होगा तो अमोनिया बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ओके, यूरिया प्रोड्यूस होगा, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा. सो वेन एवर दिस न्यूट्रिएंट्स आर यूज इन आवर बॉडी, एट दैट टाइम सर्टन नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस. ओके, तो ये हमारे बात समझ में आ गई कि एक्सक्रिएशन क्या है और ये जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ से आते हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज arising in my mind, why this waste material should be removed continuously from the body. ये वेस्ट मटेरियल को कंटिन्यूसली बॉडी से निकालना क्यों ज़रूरी है, why it is important, why it is necessary. So another answer is these nitrogenous waste and products are highly poisonous. Very first thing, they are waste product. Waste means they are not useful in body. So if something is not useful in body, we should remove it. अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में यूज़फुल नहीं है, उसका वहाँ पर यूज़ नहीं है, तो यूज़लेस थिंग को हमको हटा देना चाहिए. अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो वो क्या करेगा, जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ है उसमें डिस्टर्ब करेगा. फर्स्ट थिंग, अगर कोई भी ऐसी पार्ट है, ऐसी चीज़ है जो हमारे सिस्टम में यूज़फुल नहीं है, तो हम उसको बाजू हटा देते हैं. अगर नहीं हटाएंगे तो वो पार्ट क्या करेगा, बाकी जो फंक्शन वाले सिस्टम है उनको डिस्टर्ब करेगा. सो दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट का मतलब होता है यूजलेस, वहाँ पर उसका यूज़ नहीं है अभी, सो दैट मस्ट बी रिमूव्ड. वन थिंग. सेकंड थिंग, ऑल दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड दे आर हाईली पॉइजनस. They cannot be stored in the body. If they store in the body for some time also, they can have an adverse effect on our body, poisonous effect on our body, and the person may die also. तो ये दो वजह है जिसके वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बॉडी से निकालना ज़रूरी है. पहली वजह, ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं. दूसरा रीज़न है ये हाईली पॉइजनस है. अगर इसको हम नहीं निकालेंगे तो इट विल कॉज पॉइजनस इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. Now, how excretion takes place in unicellular animals and in multicellular animal. ऑलरेडी हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में भी देखा है कि इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, होल बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. तो एक ही सेल को सारे काम करना है, न्यूट्रिशन भी उसको ही करना है, एक्सक्रेशन भी उसको ही करना है, रिप्रोडक्शन भी उसको ही करना है और सर्कुलेशन भी उसको ही करना है. सो इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, as the body of that organism is made up of only one cell, no special system or organ is there for the function of excretion. जिस तरह आपको पता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है और सिंगल सेल से बनी हुई होने की वजह से उनके बॉडी में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन एक्सक्रिएशन प्रोसेस के लिए नहीं होता है. सो हाउ this waste material is removed out from the unicellular organism? So that is done by a process, and that process is called as diffusion. So in this way, in case of unicellular organism, the waste products are removed from the cell into the surrounding by a process that is called as diffusion. तो unicellular organism में जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, डिफ्यूजन से. जस्ट इट गेट डिफ्यूज आउट अंडर प्रेशर ग्रेडेशन और अंडर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडेशन. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडेशन या प्रेशर ग्रेडेशन की वजह से वो डिफ्यूजन होके बॉडी के बाहर निकल जाता है. वाई? बिकॉज इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल है, एंड कंप्लीट सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. तो उनके लिए बहुत ईजी होता है, वो किधर से भी वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल एंड दैट्स वाई द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग एंड अदर हायर एनिमल्स, देयर इज अ स्पेशल सेट ऑफ ऑर्गन which perform the process of excretion, and that set of organ is known as द एक्सक्रेटरी सिस्टम. तो ह्यूमन बीइंग में और बाकी के जो हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है एक्सक्रिएशन का, ये परफॉर्म करने के लिए एक सेट ऑफ ऑर्गन है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है
और वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, वो जो सेट ऑफ ऑर्गन है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो लेट्स सी what are that group of organ and how they perform the function of excretion। चलो फिर देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन यूनाइट होकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं और हर ऑर्गन का रोल फंक्शन क्या है एक्सक्रिएशन में। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सी एक्सक्रिएशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी मैंने आपको बताया हूँ कि ह्यूमन बीइंग में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स एक जगह पर आकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और एक्सक्रिएशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एंड दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज एक्सक्रिएटरी सिस्टम। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या नाम देंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो पहला है अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी की एक जोड़ी होती है, अ पेयर ऑफ किडनी। सेकंड इज द यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। तो पहला ऑर्गन हो गया अ पेयर ऑफ किडनी, दूसरा ऑर्गन हो गया अ पेयर ऑफ यूरेटर। थर्ड ऑर्गन इज अ कॉमन यूरिनरी ब्लॉडर, थर्ड ऑर्गन इज अ कॉमन यूरिनरी ब्लॉडर, सिंगल कॉमन यूरिनरी ब्लॉडर। एंड द फोर्थ ऑर्गन इज द यूरेथ्रा, number fourth is urethra, and there is a special what you can say muscles in urethra, and that is called as sphincter muscles. And finally the opening of urethra, that is called as urethral opening. okay, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑर्गन, ये है सेट ऑफ ऑर्गन, ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो सारे एक साथ मिलकर एक्सक्रिएशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गन which perform the function of excretion in human being, and this set of organ, this group of organ is known as excretory system। आपको याद क्या रखना है? excretory system of human being consists of a pair of kidney, a pair of ureter, common urinary bladder and urethra। ये चार इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पहला a pair of kidney, a pair of ureter, common urethra and urinary bladder and urethra, चार ही ऑर्गन है इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने एक्सटर्नली देख लिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किडनी में, किडनी के का स्ट्रक्चर कैसा है और यूरेटर कैसा है, यूरिनरी ब्लॉडर कैसा है और यूरेथ्रा कैसा है। नाउ लेट्स सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड हाउ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ एक्सक्रिएशन। सो लेट्स गो टू दैट पार्ट। सी अगर हम किडनी को इंटरनली देखेंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किडनी का और यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर है। इफ़ यू सी एक्सटर्नली द किडनी इज बीन शेप। अगर एक्सटर्नली हमने देखा तो किडनी क्या है? बीन शेप है। बीन शेप का मतलब क्या होता है? वन सरफेस इज आउटवर्डली कर्व्ड, अनदर सरफेस इज इनवर्डली कर्व्ड। बीन शेप, लाइक अ शेप ऑफ सीड ऑफ बीन। Each kidney at the top here having adrenal gland, that is a part of endocrine gland, but that is also having some role in excretion। वो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है लेकिन एक्सक्रिएशन में भी उसका कुछ रोल है। नाउ इफ़ यू सी द किडनी इंटरनली, अगर किडनी को हमको इंटरनली देखना है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कट द किडनी। अब कट करने के दो तरीके हैं, एक वर्टिकल कट, एक हॉरिजॉन्टल कट। When you are cutting the kidney vertically down, so that is called as VS vertical section। और अगर आप उसको horizontally कट करते हैं तो that is called as transverse section। यहाँ पर किडनी को हमने क्या किया है? वर्टिकली कट किया है, तो इट इज़ द वर्टिकल सेक्शन VS। नाउ हेयर अगर हमने अंदर से किडनी को देखा तो किडनी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, दैट इज मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट मेड्यूला है। उसके बाद रीनल पेल्विस, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। नाउ इफ यू सी क्लियरली हेयर, ईच किडनी इज सप्लाइड विथ टू ब्लड वेसल, वन इज ऑफ ब्लू कलर दैट इज द रीनल वेन एंड अनदर वेन इज ऑफ रेड कलर विच इज द रीनल आर्टरी। तो वेन क्या करेगी? किडनी से ब्लड को कलेक्ट करेंगी, और आर्टरी क्या करेंगी? किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सिंगल आर्टरी, यू कैन सी अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी गोज इनटू द किडनी, सिंगल वन,
but when it enter into the kidney, it divide and redivide into various branches that is called as arteriole. अंदर जाने के बाद ये जो सिंगल रीनल आर्टरी है वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी और उसको आप बोलेंगे आर्टेरियोल. Arteriole, a branch of artery is known as arteriole. Inside this kidney, you can see millions of nephron or uriniferous tubule. Millions of nephron or uriniferous tubule. That is nothing but the basic unit of excretion. जहाँ पर एक्चुअली एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है, यानी ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है, वो है नेफ्रॉन, या उसको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. ऐसे कितने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं हर किडनी में? मिलियंस ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर देयर. तो ये एक्चुअल जो एक्सक्रिएशन का पार्ट है, ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम है, वो कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में होता है. फाइनली दिस नेफ्रॉन रिलीजेस दैट यूरिन इनटू द hilus region of the kidney here in the pelvis region, and from that it goes to ureter और ureter से urinary bladder में आएगा. तो किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को अलग करना. यूरेटर का काम है किडनी से जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र करना. हाउ मेनी यूरेटर आर देयर? 2 यूरेटर, लेफ्ट एंड राइट. तो लेफ्ट वाला यूरेटर लेफ्ट किडनी का यूरिन लाकर यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ेगा, राइट वाला यूरेटर राइट किडनी का यूरिन लाकर यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ेगा. यूरिनरी ब्लैडर इज नथिंग बट जस्ट अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, थिन वॉल्ड मस्क्यूलर बलून लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पर क्या होता है? यूरिन स्टोर्ड होता है फॉर सम टाइम एंड फाइनली दैट यूरिन पासेस आउट थ्रू यूरेथ्रा. इन दिस वे एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. तो हमने शॉर्ट में तो देख लिया, लेकिन एक्चुअली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अलग कैसा होते हैं, सेपरेट कैसा होते हैं, ये यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया. सो लेट्स गो टू लर्न हाउ दिस नेफ्रॉन वर्क्स. नेफ्रॉन का काम कैसा होता है ये हमको देखना है. बट बिफोर गोइंग टू study in detail about the function of nephron, once again I am repeating, the set of organ which perform the function of excretion is known as excretory system. In case of human being, human excretory system consists of a pair of kidney, a pair of ureter, single urinary bladder and urethra. Inside the kidney, millions of uriniferous tubule or nephron are present that are called as the basic unit of excretory system. And each kidney is supplied with one vein that is called as renal vein, another artery that is called as renal artery. Whenever you will come across the word renal, that is related with kidney. ये बात बच्चों ध्यान में रखो, ये कीवर्ड है. जहाँ पर भी आपको renal ये वर्ड मिलेगा उसका मतलब होता है किडनी. ओके, नाउ लेट्स गो टू लर्न हाउ दिस यूरिन फॉर्म. तो यहाँ पर हमने सिंगल नेफ्रॉन या सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिया है. इसमें से आपको पता चलेगा कि यूरिन एक्चुअली फॉर्म कैसा होता है. ओके, तो ये जो सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूल? बिकॉज इट इज हैविंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. So this single uriniferous tubule is known as nephron और uriniferous tubule. सबसे पहले तो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसमें यूरिन कैसा फॉर्म होता है. तो ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट. वन इज नोन एज माल्फिजियन बॉडी. पहला जो पार्ट है नेफ्रॉन का उसको कहते हैं माल्फिजियन बॉडी. माल्फिजियन बॉडी में 2 पार्ट है. ये यहाँ से लेके यहाँ तक माल्फिजियन बॉडी है. उसमें 2 पार्ट है. पहला है बुमेंस कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस. दिस कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज हैविंग अ सिंगल लेयर सेल वॉल, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज बुमेंस कैप्सूल. ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हमने उसको ब्रॉड करके बाहर ड्रॉ किया तो वो ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसा दिखेगा. दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर. This cup-like structure is called as Bowman's capsule. And inside that cup-like structure हमने वहाँ पर देखा था कि renal artery डिवाइड होके उसकी एक ब्रांच
जाएंगी अंदर, बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे किडनी में जाने के बाद। तो हर ब्रांच को हमने क्या नाम दिया था? आर्टेरियोल। तो ये जो आर्टेरियोल है ये यहाँ पर वुमेन्स कैपिटल में इंटर हो रहा है। तो जो इंटर हो रहा है उसको हम बोलेंगे एफरेंट रीनल आर्टेरियोल। और बाद में अंदर जाने के बाद उसके बहुत सारे डिवीजन होंगे, वो फोल्ड होगा और फाइनली वो बाहर आएगा। तो बाहर आने वाले को हम बोलेंगे इफरेंट रीनल आर्टेरियोल, एफरेंट एंड इफरेंट। सो दिस coiled structure of renal arteriole is called as glomerulus। इसको क्या नाम दिया हमने यहाँ पे? ग्लोमेरुलस। तो हमारा ये हो गया वुमेन्स कैप्सूल, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है लेकिन डबल लेयर है, और ये हो गया ग्लोमेरुलस। और दोनों को मिलकर, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलकर हम क्या बोलेंगे? माल्फिजियन बॉडी। ओके, नाउ यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं एक सिंगल आर्टेरियोल इसमें एंटर हो रहा है, वाइंड होके कॉइल हो रहा है जिससे ग्लोमेरुलस फॉर्म हो रहा है, और ये कैपिलरी है, आर्टेरियोल है, थिन वॉल्ड है। देन it continued into a tube like structure that is called as proximal convoluted tubule, PCT, proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule. Then it is going down and then again it is going up. So this is called as descending limb of loop of Henle। पहला है proximal convoluted tubule, दूसरा पार्ट है loop of Henle। ये जो loop है U शेप उसको कहते हैं loop of Henle। loop of Henle में एक descending limb है और एक ascending limb है। This is the descending limb of loop of Henle through which the blood is passing down, and this is the ascending limb of loop of Henle through which the blood is going up. And then after this again there is the tubule that is called as distal tubule, distal convoluted tubule, DCT, distal convoluted tubule। ये तीसरा पार्ट है। और बाद में ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फाइनली यहाँ पर कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर हमने एक नेफ्रॉन का कनेक्शन कॉमन कलेक्टिंग डक्ट को बताया है, बट हेयर मेनी नेफ्रॉन, सच मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। ऐसी तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, और कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होने के बाद यहाँ पर जो यूरिन आएगा वो जाएगा पेल्विस रीजन में, और पेल्विस रीजन में से जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया नेफ्रॉन का। अब हम देखेंगे कि ये नेफ्रॉन का फंक्शन कैसा होता है। तो फंक्शन में हमको क्या देखना है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हाउ यूरिन इज फॉर्म। ह्यूमन बीइंग में यूरिन फॉर्म कैसा होता है, यानी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड प्रोडक्ट है वो सेपरेट कैसा होते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप कौन सी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर। दूसरी स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरी स्टेप है रीनल सेक्रीशन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन 3 स्टेजेस में होता है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा रीनल सेक्रेशन। तो चलो देखते हैं हाउ यूरिन इज फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीनल आर्टरी supplies blood to the kidney. When renal artery enter into the kidney, it divide and redivide into many branches. Each branch is known as arteriole. One arteriole enter into this Malpighian body, that is a woman's capsule, and form the coiled structure that is called as glomerulus. Now the blood from the renal artery enter into arteriole under high pressure, which contain nitrogenous waste end product, that is ammonia, urea and uric acid. So due to high pressure that nitrogenous waste product get filter। यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस है इसकी जो वॉल है वो बहुत थिन है, और इसमें जो ब्लड आएगा वो अंडर हाई प्रेशर आएगा। तो जिस तरह से हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्टरिंग करते हैं टी की, उसी तरह यहाँ पर ये जो ब्लड है अंडर हाई प्रेशर, जिस तरह हम चाय की छन्नी से चाय छानते हैं, वैसा यहाँ पे क्या होगा? ब्लड फिल्टर होगा, एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द वाटर एंड सम यूजफुल मटेरियल विल फिल्टर डाउन। वो फिल्टर होके नीचे जाएंगे और रिमेनिंग ब्लड विल गो पास अवे। एंड दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सिंगल सेल थिन वॉल्ड, so that
filtrate will go to the cup like structure that is called as Bowman's capsule. तो यहाँ पर पहले ब्लड फिल्टर होगा, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फिल्टर होके नीचे आएंगे और ये कप लाइक स्ट्रक्चर में चले जाएंगे. नाउ फ्रॉम दिस कप लाइक स्ट्रक्चर फर्स्ट इट विल गोज टू proximal convoluted tubule, then it goes to loop of Henle, descending limb, then ascending limb, then distal convoluted tubule, then common collecting duct. ठीक है. अब यहाँ पर पहला स्टेप हो गया. कौन सा था पहला स्टेप? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड अंडर हाई प्रेशर. तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, जो स्मॉल साइज के पार्टिकल है, वो फिल्टर होके नीचे आ गए. लेकिन उसके साथ साथ कुछ यूजफुल मटेरियल जैसा कि मिनरल और वाटर मॉलिक्यूल भी फिल्टर होके नीचे आ गए. उनको तो हमको पास आउट नहीं करना है. और एक बात यहाँ पर ये हो गई कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है लेकिन उसका पार्टिकल साइज बिगर है, वो यहाँ पर फिल्टर नहीं हुआ. दैट रिमेन नाउ ऑल्सो इन ब्लड ओनली एंड दैट शुड बी रिमूव. तो वो अब नेक्स्ट स्टेप में होगा. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द लूप ऑफ Henle सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. दूसरी स्टेप आ जाएगी अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. तो हमने यहाँ पर देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी, यूजफुल मटेरियल भी फिल्टर होके नीचे आ गए. नीचे आने के बाद जब ये फिल्ट्रेट आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी यूरिन. दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी यूरिन. अब प्राइमरी यूरिन का जो कंटेंट है, कंपोजिशन है, वो क्या है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और कुछ मिनरल्स भी है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के साथ साथ, और ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है. तो अगर बॉडी को वाटर का नीड है तो वो वाटर ये जो लूप ऑफ Henle है वहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा प्रॉक्सिमल का असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब में. और जो सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, सोडियम पोटेशियम वगैरह, दैट फिल्टर डाउन ड्यू टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज़ यूजफुल थिंग दैट इज़ रीएब्जॉर्ब्ड इन द लूप ऑफ Henle, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ Henle. तो यहाँ पर वो सेकंड स्टेप होंगी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी जो सब्सटेंसेस को पास नहीं होना चाहिए था वो भी पास हो गए. तो उसको ये जो नेफ्रॉन है वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, वापस ले लेगा, वापस आ जाओ, आपको जाना नहीं है. सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर आपका जो दिमाग में चल रहा था, मैं सोच रहा हूँ अभी कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पर कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है और यहाँ पर ये क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है, तो डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ क्यों नहीं गया? Why it is goes down, then come up, then again goes to the common collecting duct? This is the question. And answer for this question is that selective reabsorption. अगर डायरेक्टली ये वुमेन्स कैप्सूल यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाता था तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद डायरेक्टली वो यूरिन कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में चले जाता था, वहाँ से डायरेक्ट यूरेटर और यूरेटर से यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लॉडर में चले जाता था. यानी हमारे जो यूजफुल मटेरियल है, मिनरल्स एंड वाटर, वो भी पास आउट हो जाता था. हमको उसको पास करना नहीं है. एंड दैट्स वाई दीज स्ट्रक्चर ऑफ दिस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज हैविंग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ Henle, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन द कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. इस वजह से हमने उसको इतना घुमा कर लाया. अब इतना घुमा कर लाने में क्या हो जाएगा, जो हमारी सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएंगी. सेकंड स्टेप कौन सी है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. यानी ब्लड को, ये जो कैपिलरीज है, इनको जो प्राइमरी यूरिन में यूजफुल मटेरियल ट्रांसफ़र हो गए, मिनरल्स और वाटर, उसको रीअब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाएगा. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी हेयर दिस लूप ऑफ Henle, PCT एंड DCT इज सप्लाइड विथ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो यूजफुल मटेरियल फिल्टर होके गलती से नीचे चले गए, कहाँ पर? प्राइमरी यूरिन में, वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे. कहाँ पर हो जाएंगे? ये ब्लड कैपिलरीज में हो जाएंगे. सो दिस ब्लड कैपिलरीज विल रीएब्जॉर्ब. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिसेंडिंग लिम्ब में मिनरल्स रीएब्जॉर्ब होंगे, और ये जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ Henle का, उसमें वाटर रीएब्जॉर्ब होगा. So maximum water जितना बॉडी को नीडेड है, that will get reabsorbed, minerals will get reabsorbed, and finally the urine will become concentrated form. वो आ जाएगा इधर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में और एक बात हमने देखी थी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वही पार्टिकल फिल्टर होके प्राइमरी यूरिन में आए जिसका साइज़ छोटा था, पार्टिकल साइज़ छोटा था.
But those nitrogenous waste material whose particle size was bigger not get filtered during ultrafiltration. वो filter नहीं हुए, वो blood में वैसे ही है, उनको भी निकालना जरूरी है. So in that case, that bigger molecule of nitrogenous waste material secreted, converted into smaller one and added in the urine. So here यहाँ पर जो blood capillaries है distal convoluted tubule के पास, अब यहाँ पर ब्लड फिल्टर हुआ था और कुछ पार्टिकल वैसे ही चले गए थे इधर, तो वो पार्टिकल का क्या होगा, सेक्रीशन होगा. दैट विल कन्वर्ट इनटू स्मॉलर वंस, गेट सेक्रेटेड एंड एडेड इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो तीसरी स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन की है वो क्या है, सेक्रेशन. पहली स्टेप थी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरी थी रीएब्जॉर्प्शन और तीसरी है सेक्रेशन. पहली स्टेप में क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर ब्लड फिल्टर होकर उसके नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल सेपरेट हो गए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ यूजफुल मटेरियल, मिनरल्स और वाटर भी फिल्टर डाउन हो गए. दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो पहली स्टेप में यूजफुल मटेरियल फिल्टर डाउन हो गए थे उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया हमने सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मेथड से. और तीसरी स्टेप में क्या हुआ कि सेक्रीशन हो गया. जो लार्जर पार्टिकल फिल्टर आउट नहीं हुए थे वो सेक्रीशन से फिर यूरिन में ऐड हो गए. नाउ द यूरिन फॉर्म इज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, सेकेंडरी यूरिन. अब ये यूरिन जाएगा कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में. यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसको कनेक्ट हो रहा है, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट को. एंड दिस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट विल टेक दैट यूरिन टू द पेल्विस रीजन ऑफ किडनी, फ्रॉम वेयर इट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर. तो अब ये जो ब्लड तैयार हो गया, यूरिन तैयार हो गया, ये क्या होगा, ये वापस हमको जाना पड़ेगा इधर. हाँ, अब ये सारा की सारा यूरिन यहाँ पर आ गया पेल्विस रीजन में. सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का फाइनली यूरिन यहाँ पर जमा हो जाएगा आके. यहाँ पर आने के बाद वो जाएगा यूरेटर में एंड यूरेटर विल टेक इट अप टू द यूरिनरी ब्लैडर. इधर का भी वैसा ही यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा. यूरेटर का काम क्या है, टू पास द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. इतना ही रोल है उसका. इन यूरिनरी ब्लैडर दैट यूरिन विल स्टोर फॉर सम टाइम. यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरिन कुछ देर तक रुक जाएगा. वंस द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, इट इज़ कम्प्लीटली स्वेल, तो उसके अंदर मिक्सचुरेशन होगा. ये जो यहाँ पर मसल्स है, दैट मसल्स विल relax and the opening will open and the urine pass out from the body frequently. So this is how excretion process takes place in case of human being. इस तरह से human being में excretion process होता है. और ये जो complete process है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन के थ्रू से होता है. That's why nephron is called as basic unit of excretory system. Okay, now the useful product like amino acid, glucose, salt etc. are reabsorbed. यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रेशन होता है उस तरह से प्लांट में भी एक्सक्रेशन होता है क्या. सो इन केस ऑफ प्लांट एक्सक्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, सर्टन वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस, बट इन केस ऑफ प्लांट देयर इज नो स्पेशल सिस्टम फॉर रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट. पहले हम देखेंगे कि प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट कौन से प्रोड्यूस होते हैं. तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑक्सीजन, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस. सो इन केस ऑफ प्लांट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीफ. तो जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, तो स्टोमेटा में से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं. एक्सेस जो वाटर है, एक्सेस वाटर भी अगर है प्लांट में, तो दैट आल्सो रिमूव थ्रू द स्टोमेटा बायो प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. तो तीन चीज़ें हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है और एक वाटर है. ये अगर एक्सेस है प्लांट में, ज़्यादा है, प्लांट को इसकी नीड नहीं है, तो इन दैट केस ऑल दिस थ्री मटेरियल आर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा. गैसियस एक्सचेंज के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिमूव होगा और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में वाटर रिमूव होगा. Some other waste material which are produced in the plant, they directly do not removed out. Directly remove होने के लिए उनके पास कोई सिस्टम नहीं है. So some waste material store into the leaf, and every year you know that in a particular season all the leaf of the plant fall down and new leaves arises. तो हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में प्लांट के सारे लीफ गिर जाते हैं और नए लीफ आ जाते हैं. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है
फाइनली जाकर प्लांट के लीफ में जमा हो जाते हैं, और जब वो लीफ फॉल ऑफ हो जाता है, वी कॉल्ड एज लीफ फॉलन, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट में से अलग हो जाते हैं. समटाइम सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ गम, इन द फॉर्म ऑफ रेसिन that are stored into the cell of the bark, and bark of the tree is also removed every year and new bark comes out, and some, in case of some plant, the waste materials are removed through the roots also. So this is how excretion takes place in human being and plants. तो आज हमने बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है एक्सक्रिएशन प्रोसेस. डिटेल में यहाँ पर स्टडी किया. आई थिंक इट विल हेल्प यू टू क्लियर ऑल द डाउट इन अ वेरी सिंपल वे. यू गो थ्रू इट, learn it nicely and prepare for your exam. As far as your exam is concerned, this topic is also important. Sometime long answer question also may ask to you from this point. So this is enough for today's lecture. Thank you very much for watching. Like my video if like it, share it, as well as you have to subscribe it. Those who are new, those who have not subscribed yet now, इसे सब्सक्राइब करो, तो रेगुलरली आपको इसी तरह से सिंपल वे में मेरे लेक्चर्स मिलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. स्टे एट होम, स्टे हेल्दी. थैंक यू वंस अगेन.